A very good noon to all respected members of ICAI. On behalf of ICAI Jaipur branch, I, Saurabh Sharma, welcomes all the members in the virtual webinar on the topic of valuation of securities and financial assets organized by the Jaipur branch of ICAI. Our today's special guest for sharing his views on the topic is CA Abhishek Mishra sir. He is fellow member of ICAI and more than 16 years industry experience in the field of finance, taxation and companies law matter. Sir is a member of ICAI Registered Valuer Organization and registered as an insolvency professionals with IBBI and many more professional qualification which can't be told in a little time. Sir is very energetic, dedicated, enthusiastic speaker and marathon runner also. He is inspiring soul to us. Over to you, sir. Dear friends, in this session today, I have been invited to impart some words of wisdom on valuation of securities of financial assets, and I am pleased to be here. Thank you, Jaipur branch, for inviting me. Thank you, Anil. We have an eminent speaker with us today, CA Rohit Khandelwal. While he would have his set of ideas about the topic he would like to cover on valuation, I would like to throw some light on three things. One, the scope of valuation services for a registered valuer in SFA. Second is about the new regulator which is coming, the National Institute of Valuers proposed to be formed. Third, the new limitations and caveats introduced from 1st October 2020. About the scope, I would like to add that under the Companies Act 2013, the relevant sections relating to valuation were notified in October 17, and which eventually paved way for professionals like CA, CS, CWA to look for professional opportunities in valuation field. This further led to a well laid down structure where some 11 RVOs were allowed to be formed. 50 hours training was made mandatory for those wanting to appear for the valuation exam, followed by the online valuation exam, followed by the membership with the RVO, and eventually leading to the registration with IBBI. As of now, any valuation required to be done under the Companies Act and IBC requires valuation to be conducted by a RV. We have been hearing that there are bright chances that the amendment shall be made under the Income Tax Act also, and RV shall be allowed to carry out valuation where currently only MBs are allowed. So no wonder the RV SFA community is now more than 1,000 members. Is now more than 1,000 members on an all India basis, and it is still counting. About the new regulator, I would like to add that the central government, in order to provide framework for regulation and development of valuation profession, formed a committee of experts which submitted its draft report in April 20 this year. Major highlights of the report is the proposal of establishment of the National Institute of Valuers with the objective to develop and regulate the valuation profession, to develop and regulate the market for valuation services, to protect the interest of the users of the valuation services. The vision of the bill is that the valuation profession in the long run should be a full-time full-time profession, just like the doctors and the chartered accountants, and that the stakeholders should use valuation services because they find value in it, and not just because it is a legal mandate. The scope of the bill is that the framework should not be limited to the valuation under the Companies Act and IBC, as are presently covered under the valuation rules, but should also cover valuation under other laws in a phased manner and in due course. The four important elements of the bill are: first, the National Institute of Valuers, which would be a statutory body primarily responsible for the development and regulation of the valuation profession in India. Second, the valuers, who would render valuation services after registration with the institute. Third are the valuer institutes, who would provide educational courses after registration with the institute. Fourth are the VPOs, who would be the frontline regulators primarily responsible for the development of the valuation profession after registration with the institute. The bill also talks strongly about the registered valuers to ensure at least a minimum quality of valuation services across the market. The institute setting up valuation standards based on the recommendations of the valuation standard committee, and every valuer abiding by it. Valuers not to conduct valuation where they have conflict of interest. Valuers not to outsource any of their duties and responsibilities under the Act, except those specifically permitted by the institute. Valuation reports not to carry any disclaimer which has the potential of diluting the responsibility of the valuer, or which makes valuation unsuitable for the purpose for which the valuation was conducted. The fee of valuers to be decided by the market,
subject to the condition that it is not ad valorem to the value of assets being valued or in the nature of a success fees. The VPO should compete among themselves to provide superior quality valuers. So these are some major highlights of the valuer bill which has come in April 2020. Lastly, I would like to add that the new guidelines on the use of caveats, limitation, and disclaimer by the RVs in the valuation reports have come, which is to be noted by all the RVs who are present in this webinar. I'm sure they've already read it. These guidelines have come into force from 1st of October 20 in respect of valuation reports completed by the RVs. The guidelines are much helpful in streamlining and standardizing the disclaimers given by valuers in their report and guide them especially on those responsibilities that they should not disown in their reports while carrying out the valuation work. So with all this, I would like Rohit to take over and go on with his discourse. Thank you very much, sir, for sharing your Thank you very much, sir, for sharing your professional knowledge and motivating us. Now, moving further, our today's speaker for this webinar is CA Rohit Khandelwal, sir. Rohit Khandelwal, sir, is a fellow member of ICAI and also an associate member of ICSI. Sir is designated partner at Spark and Associates, Indore-based leading CA firm, where he handles corporate consultancy wing of the firm. Rohit sir is a registered valuer under Securities of Financial Assets category and completed his course from Harvard University on entrepreneurship in emerging economics. Without wasting much time, I would be privileged to invite Rohit sir for the session. Thank you. Over to you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, Abhishek sir, for your word of wisdom. Thank you so much to the Jaipur branch of the CIRC of ICAI for inviting me to interact with all of you. It's my maiden speech in Jaipur, although it is by virtual mode, but it's my maiden speech in the Jaipur. And Rajasthan is my home state. I basically belongs to a town named Aklera, which is situated in Jhalawar district. So basically I'm from Rajasthan. Came in Indore in 2006 to pursue my chartered accountancy, and rest is history. So basically I'm from Rajasthan, and it is very pleasure for me to interact with all of you. I hope, sir, I am audible and visible properly. So yes, with this, let me start with my discussion for today. Basically, whenever we talk about valuation of securities or financial assets, then major part of the doubt are pertaining to the particular problem, that is, sir, what is the meaning of financial assets for you? We are very much aware about this word security, but what is the meaning of financial assets? तो जनरली प्रोफेशनल्स को ये डाउट रहता है फाइनेंशियल असेट्स क्या, और वो हमारा सर एक कोर एरिया है. दिस इज अ कोर एरिया टू अस, दिस इज व्हिच इज अंडर इंड AS 109. We know the term financial instrument, where we talked about two terms, financial assets and financial liabilities. So sir, this word is derived from IND AS 109, जहां हमें समझ में आता है कि what are financial assets and what are financial liabilities. So this word is derived from there, but this profession is not derived from the IND AS. This profession is derived from Companies Act 2013 section 247. अगर वैल्यूएशन और वैल्यूएशन से रिलेटेड लॉज एक गंगा है, तो गंगोत्री जो हमारी है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 247. विदाउट दैट हमें कोई रिकॉग्निशन नहीं था, और उसके पहले ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं था जहां से ये वर्ड हम यूज कर पाते, रजिस्टर्ड वैल्यूअर. दो बातें मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं सर. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ a seminar related to valuation, whether we are going to discuss the provisions regarding valuation or we are going to discuss the fundamentals or practical approach of valuation. तो सर सेकंड स्टेप में हम वैल्यूएशन की टर्मिनोलॉजीज, वैल्यूएशन के मेथड्स और वैल्यूएशन की एक्सरसाइज कर सकते हैं. बट फर्स्ट लेक्चर ऑफ वैल्यूएशन शुड बी what are the various provisions and what are the various provisions under various act जो अभी वैल्यूएशन डिमांड करते हैं फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वैल्यू और फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. So basically my lecture will be for three aspects. I will cover three acts, which is Companies Act, Insolvency Code, as well as Income Tax Act 1965. So let me share my presentation with all of you. Allow me to share this. Yes. So here we go. Valuation of securities or financial assets.
as I said earlier, हम 3 एक्ट कवर करेंगे, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एंड आईबीसी। मुझसे पहले अभिषेक सर ने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया, देयर आर ओनली 2 एक्ट एज ऑफ नाउ, केवल 2 एक्ट हैं, कंपनीज एक्ट और आईबीसी, जहां स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को अलाउ किया है। As far as income tax act is concerned, there are only 2 names. One is chartered accountants and other one is merchant banker. हालांकि majority of the part is given to the merchant bankers, और अभिषेक सर बोल ही रहे थे कि we are requesting from the regulators and we are representing ourselves to the regulators to include the word registered valuer as soon as possible. But अभी सब बातें चल रही हैं, अभी तक 2 ही नाम वहां हैं, chartered accountants and merchant bankers. Now, as a chartered accountant, why I should participate in this discussion? What is here for me? मेरे लिए यहाँ पर क्या है? Sir, सबसे पहले जो हमारे लिए यहाँ पर है, as a practicing chartered accountant, that is Income Tax Act 1961, there are number of provisions and rules of Income Tax Act 1961 and Income Tax Rules 1962 which talks about valuation from chartered accountants. So we should know कि कहाँ chartered accountants are already eligible to do the valuation aspect. Point number 2, I was talking about Ind AS, और Ind AS में एक बहुत मेजर टर्म, बहुत पॉपुलर टर्म फेयर वैल्यू, और उस फेयर वैल्यूएशन के लिए जहां हमें जनरली इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पर करना अब कंपलसरी है, although Ind AS is not applicable to all the companies, but जिन भी मेजर या बड़ी कंपनीज पर, लार्ज एंटिटीज पर, NBFCs पर Ind AS applicable है, we need to take valuation of investment at fair value. Under FEMA, only practicing chartered accountants and merchant bankers are allowed. So हमारे लिए FEMA के अंदर भी स्कोप है वैल्यूएशन का. Next and most important aspects, as a practicing chartered accountant, we are having number of client companies. Regularly they ask from us, sir हमें preferential issue लाना है, हम right issue लाना चाहते हैं, we want to increase the capital, authorized capital बढ़ाना है, subscribe paid up capital बढ़ाना है, लोन लेना है, लोन का कन्वर्जन इक्विटी में करवाना है, अमलगमेशन करवाना है, 2 कंपनीज का मर्जर हम करना चाहते हैं, बायबैक करना चाहते हैं, एंड एज अ क्लाइंट कंपनी दे लुक टुवर्ड्स अस कि सर आप एडवाइस करो, व्हाट आर द प्रिकॉशन वी नीड टू टेक एंड व्हाट आर द रेगुलेशन वी नीड टू कंप्लाई. So being a practicing chartered accountant, as far as Companies Act is concerned, the major role of a chartered accountant is with respect to consultancy about the valuation. कि under various provisions हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ without taking valuation from registered valuer we should not move ahead. ये बहुत बड़ा aspect सब होगा जो हम आज यहाँ discuss करेंगे. Under what provisions of Companies Act 2013 and Companies Rules registered valuer से valuation करवाना compulsory है. And the most important aspect, अभिषेक सर ने जितना कुछ बताया about the valuation profession, which is actually emerging right now, might be possible after his address and after my session towards this valuation, you aspire yourself to become a registered valuer, क्योंकि थोड़ा सा emerging profession है और अभी चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो open होनी बाकी हैं, तो might be possible it will provide a great opportunity for all of us. Right. Now, we start with this. Companies Act 2013 and Insolvency and Bankruptcy Code 2016 specifically provide the valuation from registered valuer. Both the act provides valuation exercise to be undertaken by registered valuer only. And first we are talking about Companies Act 2013, section 247. If we summarize about this section and what we can learn, whenever a valuation is required to be made, whether it is with respect to property or your shares or net worth or even goodwill, intellectual property rights, Companies Act, even liabilities, Companies Act says कि आपको valuation लेना पड़ेगा एक registered valuer से. Now, there are some questions. अभी भी regular basis पर, when I receive the call from the fellow members and our senior members, generally मेजर कॉल तो रेलिवेंट होते हैं, बट कभी कभी या रेगुलरली ऐसे कॉल्स बहुत होते हैं जहां हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सर वैल्यूएशन करवाना है, उनकी बिल्डिंग है उसका वैल्यूएशन करवाना है, एंड रोहित यू आर रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सो कैन यू अंडरटेक दिस ट्रांजैक्शन. So first we need to understand that there are 3 categories of
असेट्स जहां पर वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, और तीनों कैटेगरीज में रजिस्टर्ड वैल्यूअर अलग अलग है. द फर्स्ट कैटेगरी इज लैंड एंड बिल्डिंग, second category is plant and equipments, and third category is SFA, for which we talking about, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. SFA, securities or financial assets. Under both the categories of land building and plant and equipments, only chartered engineers are allowed, like engineers are allowed to enroll for the examination. But for this securities or financial assets category, we chartered accountants, company secretaries, as well as MBA and CWAs are allowed to enroll for the examination. So हमारे लिए सर केवल एक ही एरिया बचता है, that is securities or financial assets. तो जब वो कहते हैं कंपनीज एक्ट में कि चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, that include land building, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन होगा, that is different aspect कि हम वो वैल्यूएशन नहीं कर सकते, because हम केवल वैल्यूएशन कर सकते हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स. लेकिन हमें अपॉइंट कौन करेगा? Whether we are auditor, which is appointed by board or shareholder is the case? Answer is no. Being a registered valuer, हमारा appointment होगा by the audit committee. Now there is an argument कि sir audit committee, it is not necessary to constitute an audit committee in every damn company, whether it is private or public. जरूरी नहीं होता कि audit committee हो. So yes sir, it is very clear. If there is no audit committee, then appointment of the registered valuer is to be done by the board of directors. So it's simply audit committee. Or if there is no audit committee, then our appointment will be done by board of directors. चलिए तो सर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा एस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं. हमारा डिस्कशन का रेलेवेंट पॉइंट अब है कौन कौन से प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड वेरियस रूल्स ऑफ कंपनीज रूल्स टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन फ्रॉम registered valuer strictly. The first point is section 54 subsection 1, which is it with rule 8 of companies rules 2014 with respect to share capital and debentures. स्वेट इक्विटी शेयर सर हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कंपनी इशू करती है अपने डायरेक्टर्स, अपने एम्प्लॉइज को. Why company issue equity sweat equity shares? Because they created some intellectual property rights or value addition for the benefit of the company. That's why we are in the process to reward them, and we are rewarding them in the form of equity shares. Generally, we issue sweat equity shares to our employees, our directors, etc. because उन्होंने कुछ intellectual property rights हमें create करके दिया. We want to provide them reward. Generally, हम थोड़ी सी कम प्राइस पर करते हैं या डिस्काउंट पर करते हैं या मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा कम प्राइस पर करते हैं. लेकिन अब सीन थोड़ा सा पलटा है और यहां पर कहा जाता है कि यू नीड टू टेक 2 वैल्यूएशन फ्रॉम रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स. क्यों 2 वैल्यूएशन लेने हैं? मैंने बहुत स्पेसिफिकली लिखा कि आपको किसी वैल्यू एडिशन के रेस्पेक्ट में शेयर इशू करने हैं. फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट जो क्रिएट होकर आपको मिला है. फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएट हुआ या कोई वैल्यू एडिशन क्रिएट हुआ, तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरटेक द वैल्यूएशन एक्सरसाइज ऑफ दैट पर्टिकुलर आईपीआर. तो सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने वैल्यूएशन करवाया एंड वी कैलकुलेटेड दैट कि हमने जो लाइक ए पैटेंट क्रिएट किया है उसकी वजह से हम फ्यूचर में 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमा पाएंगे. सो इफ वी डिस्काउंट इट विद अ नॉमिनल रेट, तो 1 करोड़ रुपए इसकी आज की वैल्यू आती है इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की. इट मींस आपको 1 करोड़ रुपए तक के आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को. नाउ हाउ मच शेयर वी शुड इशू? क्या एक शेयर 10 रुपए का है तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 कर लें? तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आपने इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन भी करवाना है. आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तो वैल्यूएशन करवा लिया. नाउ यू नीड टू टेक द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स आल्सो. देयर आर 2 वैल्यूएशन इन्वॉल्व इन स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू. फर्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ राइट्स जो क्रिएट हुआ, अनदर वन इज वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर जो इक्विटी शेयर आप इशू कर रहे हो. राइट, मूविंग फॉरवर्ड, पॉइंट नंबर 2 फॉर टुडे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर. ये सबसे पॉपुलर ट्रांजैक्शन है एंड ऑलमोस्ट वैल्यूएशन एक्सरसाइज जो आज की डेट में हो रही है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कंपनीज एक्ट सेज कि अगर आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है
वैल्यूएशन करवाना जरूरी है। जिस वैल्यू पर आप शेयर इशू करना चाहते हैं, that value cannot be an arbitrary value. It should be the value which is derived by the registered valuer by undertaking a particular valuation exercise. तो सर वैल्यूएशन रिपोर्ट हमें लेनी होती है अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना है कंपनी को। तो कई बार सीनियर्स के सर इवन आज भी कॉल आते हैं एंड दे आर्ग्यू लाइक कि यार रोहित ये तो प्राइवेट कंपनी है, आई डोंट थिंक इन पर स्ट्रिक्टली इतना टिपिकल प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ऑलमोस्ट सारे टिपिकल प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होते, पब्लिक पर होते हैं। हमारी एक छोटी सी क्लाइंट कंपनी है, हम बहुत पॉजिटिव होते हैं क्योंकि कंपनीज को लेकर, हमारे क्लाइंट्स को लेकर। बहुत छोटी सी कंपनी है, 10 लाख रुपए की कैपिटल है, 7 लाख पेडअप कैपिटल है और करीब अभी 1 लाख रुपए और उन्हें कैपिटल का बढ़ाना है क्योंकि लोन लेना है। तो बैंक वाले कह रहे हैं थोड़ी सी पेडअप कैपिटल और बढ़ा लें, तो 1 लाख रुपए का प्रेफरेंशियल इशू और करना है, क्या वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा? सर बिल्कुल हमें बुरा लगता है सुनते हुए, और एक्चुअली बुरा भी लगता है क्लाइंट के लिए, बट इट इज सेड बट ट्रू कि यस आपको वैल्यूएशन करवाना होगा। सर जो वैल्यूएशन प्राइस आती है उससे कम पर या उससे ज्यादा पर सब्सटेंशियली डिफरेंस करके आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरटेक अ वैल्यूएशन एक्सरसाइज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, it's said but it is true for all type of company whether it is public or private. Now the next point is कि हम तो राइट इशू ला रहे हैं। एक्चुअली ये भी अब बहुत एक जग जाहिर सी बात है, इट इज वेरी पॉपुलर अमंग द स्टेक होल्डर्स कि राइट इशू के केस में वैल्यूएशन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड वी प्रोफेशनल्स आर वेरी मच एक्सपर्ट अबाउट डाइल्यूटिंग द थिंग्स। तो हमें लगता है कि समहाउ कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जाए कि जो इशू है वो राइट इशू की शेप ले ले, और अगर हम एनी हाउ से राइट इशू प्रूव कर देते हैं तो वैल्यूएशन एक्सरसाइज करनी ही होगी, जरूरत ही नहीं है फिर वैल्यूएशन। कई बार हमें ऐसा लगता है बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लाइंट कंपनी के बिहाफ पर जब हम बात करते हैं फिर ट्राई टू बाईपास द वैल्यूएशन रूट, और हम कहते हैं कि सर ये राइट इशू है और इसीलिए वैल्यूएशन नहीं करवाना था। When I asked to them, being a corporate consultancy wing head in my firm, बहुत सारे केसेस जब फॉर्म फाइल होने आते हैं, अलॉटमेंट के फॉर्म्स, अलॉटमेंट के रिटर्न फाइल होने आते हैं, और जब हमें पता चलता है कि ये राइट इशू से बता रहे हैं, सडनली जब उसे डीपली देखें तो वो राइट इशू मिलता नहीं है। हमें लगता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर देना इज राइट इशू। सॉरी सर बट इट इज नॉट ट्रू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करना in the proportion of their existing shareholding is right issue. If what we forget, हम भूल जाते हैं कि हमने एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटरी या डिस्प्रपोर्शनेटली शेयर इशू किए हैं, और हमें लगता है we think कि ये राइट इशू है। नहीं सर, अगेन सेड बट ट्रू, राइट इशू वो नहीं होता जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर देते हैं, वहां आपको प्रपोर्शन भी ध्यान रखना पड़ेगा सर। सो इफ देयर आर 2 शेयर होल्डर्स होल्डिंग द शेयर्स इन रेशियो ऑफ 60:40, और अगर आप अब नया इशू लेकर आ रहे हैं और आपको लगता है प्रेफरेंशियल इशू नाम ना दे, राइट इशू नाम दे, और आप उन दोनों को 50-50% नए शेयर इशू कर देते हो, तो सर इट इज नॉट राइट इशू, इट इज प्रेफरेंशियल इशू, और इसी वजह से फिर वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। आई रॉट इज वेरी क्लियरली पॉइंट नंबर 2, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू हो रहे हैं बट ये डिस्प्रपोर्शनेटली इशू हो रहे हैं, वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। Right. Point number 3, right issue, very simple, valuation is not required. But if it is a declined right, please listen it very carefully. If it is a declined right means कि हमने तो सर प्रपोज किया था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बट दे डिनाइड टू टेक द शेयर्स, और इसीलिए फिर हम किसी और को इशू कर रहे हैं। सॉरी सर, ये रिनंसिएशन नहीं है, ये डिक्लाइंड राइट है, और फिर ये भी एक तरीका है ना सर, अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके प्रपोर्शन में शेयर्स इशू नहीं किए जा रहे हैं। हमने तो प्रपोज किया था डिक्लाइन, और इसीलिए डिक्लाइंड राइट है। नहीं सर, फिर ये राइट इशू नहीं है, और ऐसे इशू के लिए आपको वैल्यूएशन करवाना होगा। नेक्स्ट, इफ इट इज रिनंसिएशन, लॉ तो नहीं कहता, बट इनकम टैक्स एक्ट के पर्पस इट इज बेटर, क्योंकि वो भी फेयर वैल्यू की बात करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू स्पेशली। So it is recommended due to Income Tax Act, in case of renunciation, you take
टेक अ वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और इनकम टैक्स जो भी कहता है, लाइक नॉट appropriate word is registered value, appropriate word is chartered accountant or merchant banker is the case. Point number 4, ये बहुत होता है, बहुत होता है। नॉन कैश कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ, एक रिसीव्ड a particular property from a person और बदले में आपने उसे शेयर्स इश्यू कर दिए। तो कितने शेयर्स इश्यू करोगे? वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय value of the share, not your face value, value of the share. Or how will you arrive with this particular amount of value of the share? हम कह रहे हैं वैल्यूएशन करवाना होगा। सो डोंट फॉरगेट इट। जब भी आप कहते हैं कि सर मैंने तो फेस वैल्यू पर इश्यू कर दिया, 10 लाख की प्रॉपर्टी एक्वायर की थी और 1 लाख शेयर इश्यू कर दिए 10 रुपए वाले, जो मेरी फेस वैल्यू थी, इट इज नॉट राइट। आपको वैल्यूएशन करवाना था और वैल्यू जो आपके शेयर्स की आती उससे डिवाइड करना था, उतने ही शेयर्स आपको इश्यू करने थे। नेक्स्ट वेरी पॉपुलर थिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, ESOP। ESOP की बात मैं आगे और भी डिटेल में करूंगा ड्यू टू अ पर्टिकुलर रीजन, बट अगर हम यहां तक ही रहें तो यस, ESOP के केस में भी वैल्यूएशन करवाना होगा। नाउ देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। सर ESOP की स्कीम हम बहुत अच्छे से समझते हैं। ESOP ओवर द नाइट नहीं आ जाता। ESOP की स्कीम बनती है, फर्स्ट वी फ्रेम द स्कीम, then we announce the scheme to the employees, then we announce a particular vesting period. After completing that particular vesting period successfully, number of shares get vested in our employee, and after that particular date employees are eligible to apply for the allotment of shares, and then we allot the shares to our employee, then they become shareholders. So sir बहुत steps है। First we announce the scheme, फिर स्कीम फ्रेम करते हैं, अनाउंस करते हैं, वेस्टिंग पीरियड फुलफिल होता है, लाइक हम कहते हैं 2 साल तक तो हमारा एम्प्लॉय बना रहेगा कंटिन्यूअसली, उससे हम शेयर्स के लिए एलिजिबल मानेंगे अलॉट करने के लिए। 2 साल तक वो रहा, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हुआ, 10,000 शेयर्स का राइट उसे मिला, शेयर्स खरीदने का राइट ESOP के रिस्पेक्ट में। अब आप कहते हो कि अक्टूबर टू जनवरी 2021, अक्टूबर 20 टू जनवरी 21 तक आप शेयर्स खरीदने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो अपना राइट, कि एक्सरसाइज द राइट। दिसंबर 2020 में आपने उसे शेयर्स अगर अलॉट किए तब जाकर वो शेयर होल्डर बनेगा। नाउ देयर इज अ डाउट कि वैल्यूएशन कौन सी डेट का चाहिए? सर वैल्यूएशन चाहिए एक्सरसाइज डेट का, वैल्यूएशन चाहिए सर एक्सरसाइज डेट का, द डेट ऑन विच एक्सरसाइज्ड। इसका सर एक और बड़ा रिलेवेंस है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट हम सैलरी हेड पढ़ते हैं, हम जब हमारे क्लाइंट्स की रिटर्न भरते हैं सर, तब ये बहुत बार यूज होता है। अंडर द सैलरी हेड कई बार हम पर्क्स की कैलकुलेशन करते वक्त जो ESOP मिलते हैं उसका डिफरेंस अमाउंट को पर्क मानकर उसकी इनकम में ऐड करते हैं। वहां भी सर इसका बहुत रेलेवेंस होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज ऑन एक्सरसाइज डेट माइनस कितने पर उसने शेयर एक्सरसाइज किया, एक्विजिशन प्राइस, ये डिफरेंस अमाउंट सर पर्क कहलाता है। 70 रुपए का शेयर आपको 40 रुपए पर मिला, 30 रुपीज इज योर इनकम अंडर द हेड सैलरी इन द नेम ऑफ पर्क। अगर 10,000 शेयर के रेस्पेक्ट में मिला है तो 4 लाख रुपए सैलरी हेड की इनकम ऐड होती है। फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स मर्चेंट बैंकर इज एलिजिबल उसका वैल्यूएशन करने के लिए। नाउ रिसेंटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंदौर। तो उन्होंने कहा कि रोहित एक SME लिस्टेड कंपनी है हमारी, SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनी है, और वो अब एक प्रेफरेंशियल इशू लेकर आ रहे हैं और उन्हें वैल्यूएशन करवाना है। As we heard कि प्रेफरेंशियल इशू के केस में वैल्यूएशन इज मैंडेटरी। मैंने सर को कहा कि सर सुनिए, बिल्कुल वैल्यूएशन इज कंपलसरी, बट सर आप यहाँ पर हमारी सेवाएं लेने से बच जाओगे, बिकॉज इफ द कंपनी इज लिस्टेड तो फिर कंपनीज एक्ट नहीं प्रिवेल करता है। सेबी रेगुलेशन 2018 फॉर ICDR, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशन 2018 ऑफ सेबी, और वो कहता है if a company is listed, if they are coming with a preferential issue, तो फिर ICDR 2018 की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती है। तो वहां पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का नाम नहीं है। और सर एक और बात बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, कि वहां वैसे भी वैल्यूएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इफ शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, तो रेगुलेशन कहता है लास्ट 26 वीक के वीकली हाई और लो का एवरेज,
और लास्ट 2 वीक के वीकली हाई और लो का एवरेज विचएवर इज हायर से कम पर आप शेयर्स इशू कर ही नहीं सकते। तो ऑलरेडी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी इज गिवन अंडर regulation 2018 with respect to ICDR for preferential issue making by listed company। तो सर वहां वैल्यूएशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, बट ऑन सेफर साइड कंपनीज 26 वीक का एवरेज और 2 वीक का एवरेज, 26 और 2 वीक के हाई और लो का वीकली हाई और लो एवरेज को चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवा लेती है। सेफर साइड ये प्रैक्टिस है जो प्रिवेल करती है और काम हो जाता है। लेकिन इफ शेयर्स आर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, तो सर फिर मार्केट वैल्यू इज नॉट रिलेवेंट। thinly traded shares, infrequently traded shares, market value is not relevant, then SEBI regulation talks about valuation, but sir वहां registered valuer नहीं है, फिर वहां एम्बिट में आ जाता है, वहां पिक्चर में आता है मर्चेंट बैंक। तो फिर वहां हमारा रोल नहीं, but yes valuation is required in case of infrequently traded shares, issue आ रहा है preferential issue और ला रही है listed company, तो वहां बेसिकली हमारा रोल है नहीं। Now if these are convertible securities, whether it is debt or preference, whether it is compulsory or optionally convertible, so there are 4 situations: compulsory convertible preferential, optionally convertible preferential, compulsory convertible debentures and optionally convertible debentures। now there will be a question, क्या valuation करवाना है? yes valuation कराना है। क्यों सर? कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज है, किस रेशियो में आप इन्हें इक्विटी में कन्वर्ट करोगे? ओ गॉट द पॉइंट, किस रेशियो में आप इसे इक्विटी में कन्वर्ट करोगे? वेदर दिस कैन बी डिसाइडेड बाय आर्बिट्ररी मेथड कि ठीक है 2:1 कर लेते हैं, 2 डिबेंचर के बदले में 1 शेयर इशू करेंगे कन्वर्जन के टाइम पर। नहीं सर, नहीं हो सकता ऐसा। You need to take a proper valuation exercise from a registered valuer of your share। Now there will be a question, वैल्यूएशन आज करवाऊं शेयर्स का जिस दिन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इशू कर रहा हूं, या वैल्यूएशन करवाऊं कन्वर्जन वाली डेट पर? तो सर यहां पर हमें एक छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या कन्वर्जन रेशियो आज फिक्स हो चुका कि कितने डिबेंचर के बदले में कितने इक्विटी मिलेंगे? जनरली कन्वर्जन रेशियो डेट ऑफ इशू पर फिक्स हो जाता है, इवन ऑफर डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। इफ कन्वर्जन रेशियो इज ऑलरेडी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू, तो सर फिर आज वैल्यूएशन करवाना होगा। The valuation is to be done at the time of issue. But if conversion ratio is to be decided according to the fair value of equity shares on conversion date, तो सर फिर as the name suggests यहाँ तो वैल्यूएशन होगा at the time of conversion। ये प्रैक्टिस बहुत कम प्रिवेल करती है। जनरल प्रैक्टिस है we decide the conversion ratio at the time of issue only. So you need to take valuation at the time of issue only। जब हम प्रेफरेंशियल इश्यूज को लेकर इतनी बात करते हैं और इतने सारे नाम लेते हैं, तो समझ में आता है कुछ नहीं बचा है एक्सेप्ट राइट इशू, नथिंग इज लेफ्ट। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आजकल हम फेस कर रहे हैं, पर्सनली मैं तो फेस कर रहा हूं कि सर हमने वैल्यूएशन नहीं करवाया था और रिसेंटली 2020 जनवरी में प्री कोविड सिनेरियो में हमने शेयर्स इशू किए थे। तो बेसिकली वो राइट इशू नहीं था, प्रेफरेंशियल इशू था। एट दैट टाइम हमने वैल्यूएशन नहीं करवाया और हमने तो शेयर्स इशू किए, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दिया आरओसी को और कोई पेनल्टी भी नहीं लगी। देन हाउ यू कैन से कि रजिस्टर वैल्यूएशन इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड? और वी आर प्रैक्टिकली ऑब्जर्विंग कि कोई हम पर पेनल्टी नहीं लगी, कोई नोटिस नहीं आया। और एक और क्वेश्चन कि क्या हमारी ओर से ये मिसकंडक्ट हो गया? तो सर अभी तक लकीली ऐसे कोई नोटिस आरओसी से आ नहीं रहे। बट बीइंग अ गुड गवर्नेंस करना क्या चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। सर जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होता है ना, जब आप आरओसी को बताएं कि हमने शेयर्स इशू किए हैं, एट दैट टाइम विद दैट पर्टिकुलर फॉर्म आपको अटैच करना चाहिए वैल्यूएशन रिपोर्ट टेकन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जिसके बेसिस पर आपने शेयर्स इशू किए। ये है कंप्लायंस, प्योर कंप्लायंस, अच्छा कंप्लायंस। नहीं कर रहे तो क्या सर? अभी तक मैंने, हो सकता है मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस रहा हो, बट मैंने अब तक कोई नॉन कंप्लायंस या वॉयलेशन पर नोटिस आता हुआ नहीं सुना है।
बट ये बहुत कम टाइम है। रेगुलेटर्स ना जाने कब कितने पुराने चीजों को निकाल कर ले आए, वी डोंट नो, वी नेवर नो। सो इट इज बेटर टू अटैच द वैल्यूएशन रिपोर्ट, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो आपके पार्ट पर एक नॉन कंप्लायंस, एंड डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट पेनल्टी। सो बेटर टू take the valuation rather to pay the heavy penalties, right? So third point, as I said earlier, मैं ESOP को कवर करूंगा डिटेल में बाद में। It is time to cover the ESOP. Sir, employees को shares issue करने के there are number of ways. First way, employee stock option scheme, ESOS, जहां एम्प्लॉइज को प्रपोज करते हैं कि आप ही के लिए इशू ला रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन बाय द शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। द सेकंड वन इज एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, ESPS, वेयर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफर। एक हमारा पब्लिक ऑफर आ रहा है या हमारा कोई ऑफर आ रहा था, उसमें हम एम्प्लॉइज के लिए भी रिजर्व रख रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, इफ यू वांट यू कैन परचेस इन दिस पर्टिकुलर ऑफर। थर्ड, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स स्कीम, जहां हम डिफरेंस अमाउंट उन्हें दे देते हैं कि इंस्टीड ऑफ टेकिंग द शेयर्स ऑफ ₹78.40 आप 30 रुपए ले लें। एप्रिसिएशन राइट्स केवल लेने का अधिकार कैश सेटल्ड होता है। फोर्थ वन इज रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम शेयर्स इशू करते हैं एम्प्लॉइज को। एंड लास्ट होता है मेडिकल अर्जेंसी से रिलेटेड जनरल बेनिफिट स्कीम, GBS, whatever the name is, हमारे लिए वो शेयर बेस्ड पेमेंट है। आज की डेट में इन्हें एक नाम दिया गया है, अम्ब्रेला नेम है इन पांचों का, शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज। सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 क्लोज बी का रेफरेंस दिया हुआ है विद रूल नंबर 16। ये रेफरेंस सर थोड़ा सा अलग है, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉय। मैं कनेक्ट करता हूं इसको। सर, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय पेमेंट करने के लिए, शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज को करने के लिए आपके पास दो रूट अवेलेबल होते हैं। सेकंड रूल इज क्वाइट ट्रिकी, फर्स्ट रूल इज वेरी बेसिक कि एम्प्लॉइज को आपने ऑफर किया, उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया, आप उन्हें शेयर्स दे दें, वो आपको पैसे दे देंगे। दिस इज डायरेक्ट रूट। और डायरेक्ट रूट में कुछ नहीं करना सर, वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लाओगे, शेयर्स का वैल्यूएशन करवाना होगा, डिस्कस्ड इट। बट देयर इज अनदर रूट, वी कॉल इट ट्रस्ट रूट, जिसे जनरली सर हम लॉ में कई बार पढ़ते हैं, ESOP ट्रस्ट। व्हाट इज दिस? सर, कंपनी जनरली अगर अपना एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहती है, तो आजकल ये बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस हो गई है टू क्रिएट अ सेपरेट ट्रस्ट फॉर द पर्पस ऑफ implementation of this particular scheme made for the purpose of payment to employees in the name of shares. बेटर है ट्रस्ट बना ले, पूरा इंप्लीमेंटेशन उस स्कीम का वो ट्रस्ट करेगा। प्रोसेस क्या होती है सर? कंपनी फिर ट्रस्ट को ऑथोराइज करती है कि ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्ट क्रिएट करती है और कहती है इंप्लीमेंटेशन आपको करना है। अल्दो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करती है या कंपनी कॉन्स्टिट्यूट करती है एक रेम्यूनरेशन कमिटी, कंपनसेशन कमिटी, एक्चुअली सॉरी, द एप्रोप्रिएट वर्ड इज कंपनसेशन कमिटी, और उनका टास्क होता है, बोर्ड की कंपनसेशन कमिटी का टास्क होता है टू फ्रेम द स्कीम, एंड लेटर हम उस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन डाइवर्ट करते हैं ट्रस्ट को। ट्रस्ट क्या करता है? ट्रस्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी उसे नए शेयर इशू कर दे और ट्रस्ट फिर ये शेयर्स एम्प्लॉइज को इशू कर दे, और ट्रस्ट को एक और बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है कि ट्रस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स एक्वायर करे, ये शेयर्स अक्यूमुलेट करें, और जब जब एम्प्लॉय शेयर्स के लिए अप्लाई करें, इस फंड में से, इन शेयर्स के ब्लॉक बल्क में से शेयर्स उठाकर एम्प्लॉइज को दे दें। इन दिस केस कंपनीज के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं होते, शेयर होल्डिंग का डाइवर्जन हो जाता है फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू योर एम्प्लॉइज। लॉ कहता है कि ट्रस्ट इज बाइंग शेयर्स ऑफ दैट अनलिस्टेड कंपनी। हाँ, पहली बात तो सर बहुत क्लियर है
ये प्रोविजन तभी लगेगा, ईसॉप वाला प्रोविजन, यहाँ वाला कंपनीज एक्ट वाला, जब कंपनी अनलिस्टेड है। इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी तो सर फिर सेबी रेगुलेशन 2014 विद रेस्पेक्ट टू शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा, वहां की हम बात कर भी नहीं रहे। इफ इट इज अ अनलिस्टेड कंपनी एंड ट्रस्ट इज बाइंग शेयर्स फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो valuation is required to be done by a registered valuer. It means if it is direct route, already discuss किया जा चुका, valuation is required. If it is indirect route, trust route है और हम शेयर होल्डर से शेयर्स एक्वायर करके एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करेंगे। एक डाउट आता है, हालांकि ये डाउट वैल्यूएशन से रिलेटेड कम और कंपनीज एक्ट से रिलेटेड ज्यादा है। ट्रस्ट को पैसा कहाँ से मिलता है शेयर्स खरीदने के लिए? तो ट्रस्ट को लेंडिंग करती है कंपनी और ट्रस्ट फिर लेटर ऑन इसको रीपे करेगा कंपनी को जब एम्प्लॉय पैसा मिल जाएगा। डिफरेंस अमाउंट का क्या करते हैं सर? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बहुत सीनियर है, आपको पता है डिफरेंस हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, P&L या एक्सपेंस करना चाहते हैं, एज द केस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, एक्चुअली यहाँ वैल्यूएशन में हमारा रोल नहीं है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर एसएफए कैटेगरी का, जिस कैटेगरी को मैं बिलोंग करता हूँ, आप भी बिलोंग करेंगे अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनते हैं एसएफए कैटेगरी, तो सर हमारा रोल यहाँ बहुत कम है। और एक्चुअली अगर लॉ को बहुत प्लेन तरीके से पढ़ा जाए तो ये क्लिक भी नहीं होता, बट इफ वी रीड बिटवीन द लाइंस, तो मैंने एक डेप्थ जब जाना तो मुझे ये समझ में आया, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, बट अब तक तो मैं जहां भी बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही ही जा रहा है और मेरा एस्पेक्ट बिल्कुल सही निकल रहा है अभी तक, तो कि यहाँ पर रोल हमारा नहीं बट दूसरे रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स का जरूर है, इफ वी रीड द लॉ वेरी केयरफुली। सेक्शन 73 ड्रैकोनियन सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट डिपॉजिट्स। एक तो ये सेक्शन और फिर डिपॉजिट्स के रूल। बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है सर सभी यहाँ पर, तो सबको पता होगा 2014 में जब ये एक्ट आया और सेक्शन 73 का मैटर स्टार्ट हुआ, तो वी ऑल वर क्वाइट अफ्रेड कि यार ये तो बहुत टिपिकल चीज है, हर किसी चीज को आप डिपॉजिट मान लो। फिर धीरे धीरे उसे थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। आज सिचुएशन क्या है वो बात मैं बाद में करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट। पहले मैं डिबेंचर के रिस्पेक्ट में वैल्यूएशन का मैटर डिस्कस कर लेता हूँ। सर डिबेंचर्स अगर सिक्योर्ड है तो उन्हें डिपॉजिट नहीं माना जाता। कंपनीज एक्ट सेज if debentures are not treated as deposit, debentures are not treated as deposit if secured by creating first charge. Carefully, it should not be second or subsequent charge, it should be first charge on your assets except intangible assets, उस पर नहीं होना चाहिए। It means अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं सर, एंड इफ यू डोंट वांट कि आपके डिबेंचर डिपॉजिट ट्रीट हो, आप ये नहीं चाहते हैं, तो एक ही तरीका है सर, डिबेंचर्स रखने होंगे सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग फर्स्ट चार्ज। आप कहोगे यहाँ कहाँ है वैल्यूएशन? सर वैल्यूएशन है पॉइंट नंबर 2 में। उसकी कंडीशन है कि अगर आप डिबेंचर्स को सिक्योर कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग अ फर्स्ट चार्ज ऑन योर असेट, you need to take very proper care कि आप 100 करोड़ के असेट पर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो डिबेंचर्स भी 100 करोड़ से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। मींस चार्ज शुड बी एडिक्वेट। अमाउंट ऑफ द डिबेंचर शैल नॉट एक्सीड मार्केट वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिस पर आप चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। जितने अमाउंट की वो प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा के डिबेंचर्स नहीं होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है, फर्स्ट यू क्रिएट द चार्ज, पॉइंट नंबर 2 चार्ज इज एडिक्वेट। जितनी अमाउंट की प्रॉपर्टी थी उतने के ही डिबेंचर हैं, उससे ज्यादा के डिबेंचर्स इशू नहीं किए हैं जितना हमने प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया है, तो आप बच गए सर, फिर डिपॉजिट नहीं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी कितने की है? क्या बुक वैल्यू को वैल्यू मान ले? आंसर है नहीं। आपको उस असेट का वैल्यूएशन करवाना होगा फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो टेक्निकली आप ये क्रिएट करेंगे किसी बिल्डिंग पर, अपनी किसी प्लांट पर, किसी इक्विपमेंट पर चार्ज क्रिएट करेंगे, तो टेक्निकली यहाँ आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाना है, लैंड बिल्डिंग या प्लांट और इक्विपमेंट्स वालों से, तो मोर स्कोप फॉर अदर क्लासेस वैल्यूअर। इट मींस जो मैंने हाईलाइट किया सर वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इफ डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टिबल and if debentures are unsecured,
नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, तो ये डिबेंचर्स डिपॉजिट ट्रीट होंगे। नॉन कन्वर्टिबल अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स। बचना चाहते हैं तो क्या सर, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, चार्ज एडिक्वेट होना चाहिए। कितने की प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हुआ है वो वैल्यूएशन आपको प्रॉपर्टी का करवाना होगा। ये सेक्शन 73। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स या कनेक्टेड पर्सन के साथ किया हुआ नॉन कैश ट्रांजैक्शन दो तरह से होता है। या तो कंपनी की असेट हम डायरेक्टर को दे रहे हैं, डायरेक्टर्स को कुछ पैसा देना था, हम असेट दे रहे हैं, या डायरेक्टर ने हमें असेट दी है उसे हमको पैसा देना था। डायरेक्टर के लिए हम ऑब्लाइज थे, डायरेक्टर को हमसे पैसा लेना था, हम बीइंग अ कंपनी हमें डायरेक्टर को पैसे देने, हमने पैसे नहीं दिए, हमने बदले में शेयर्स इशू कर दिए, सर शेयर्स का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्टर से असेट एक्वायर करते हैं या डायरेक्टर कंपनी से असेट एक्वायर करता है, इन बोथ द केस आपको उस असेट का वैल्यूएशन करवाना है फ्रॉम द रिलेवेंट कैटेगरी रजिस्टर्ड वैल्यू। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्टर कंपनी से असेट एक्वायर करे सर, या कंपनी डायरेक्टर से असेट एक्वायर करे, असेट का वैल्यूएशन होगा रिलेवेंट कैटेगरी। हमारा स्कोप यहां भी थोड़ा कम है, बट इफ हम शेयर्स डायरेक्टर को इशू कर रहे हैं फॉर एक्वायरिंग असेट्स फ्रॉम द डायरेक्टर, तो सर ऑलरेडी मैं 62(1)(c) वाली स्लाइड में कवर करके आया हूं कि हमें वैल्यूएशन शेयर्स का करवाना होगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। जनरली तो हम इसे मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर मानते हैं, बट सर यहाँ पर एक और काम भी होता है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग विद योर क्रेडिटर्स। तो इसीलिए हम बेटर वर्ड यही लिखना चाहते हैं अभी भी जो लॉ में है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। इट इंक्लूड मर्जर, डीमर्जर एज वेल एज कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अनलिस्टेड कंपनीज का मर्जर हो रहा है सर। अभी एक हमारा केस चल रहा है जहां एक कंपनी में 6 कंपनियां मर्ज हो रही हैं, मींस उसके बाद 7 कंपनीज एक कंपनी में मर्ज हो जाएंगी, तो एक कंपनी में 6 और कंपनियां मर्ज हो रही हैं, टोटल 7 कंपनीज फिर एक हो जाएंगी। नाउ द क्वेश्चन इज, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल हम समझें कि वैल्यूएशन किसका करवाना है। So being a practicing chartered accountant, you know it very well कि हमें स्वैप रेशियो कैलकुलेट करना होता है, एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पार्ट पर, in respect of their one share, how much shares of acquiring company need to provide them. उनके एक शेयर के बदले में हमारी कंपनी को कितने शेयर्स देने उनके शेयर होल्डर्स को। और यहीं पर स्कोप है वैल्यूएशन का। और सर आज की डेट में हम वैल्यूएशन करेंगे 7 कंपनियों का, जो मर्ज हो रही है 6 उनका भी, और जिस कंपनी में मर्ज हो रही है उसके शेयर्स का भी वैल्यूएशन होगा। और सर लॉ ना केवल हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम शेयर्स का वैल्यूएशन करें, हमसे ये भी एक्सपेक्टेशन है कि हम स्वैप रेशियो भी कैलकुलेट करके दें। दैट्स व्हाई वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट स्वैप रेशियो इज आल्सो रिक्वायर्ड। मर्जर ऑफ 2 or more अनलिस्टेड कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ बोथ द कंपनीज ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। तो बोथ लिखा सर, एक अमलगमेटिंग और एक अमलगमेटेड। बट अगर 6 कंपनियां हैं तो 6 का, और 7वीं में मर्ज हो रही है तो 7 का वैल्यूएशन होगा सर स्टैंड अलोन बेसिस पर, और नॉट ओनली वैल्यूएशन, इवन कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेशियो। टेक्स्ट, डेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर होती है, क्रेडिटर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है, तो सर असेट्स का वैल्यूएशन होगा कि आपकी कितनी असेट्स हैं और अभी आपको कितना पेंडिंग अमाउंट है, तो असेट्स का आपको वैल्यूएशन करवाना होगा। तो वेदर इट इज अमलगमेशन और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन होगा। नाउ सर कोइंसिडेंटली ये केस में अभी डील कर रहा हूं, इट्स नॉट फॉर द पार्ट ऑफ वैल्यूएशन एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट। सर हमारी कंपनी है, क्लाइंट कंपनी है, जिसमें 5 शेयर होल्डर्स हैं। एक्चुअली एक हटके 6 शेयर होल्डर्स थे सर एक कंपनी में, और सबके पास इक्वल शेयर्स थे एक्सेप्ट 1 पर्सन, उनके पास 10% शेयर थे। तो एक्चुअली 18 5 शेयर होल्डर्स के पास और एक शेयर होल्डर के पास 10% शेयर्स थे। सर ये 6 पर्सन ही डायरेक्टर भी हैं कंपनी में। अभी 6th पर्सन जिनके पास 10% शेयर होल्डिंग है,
इनका बचे 5 डायरेक्टर्स के साथ एक सब्सटेंशियल क्लैश हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में डिस्प्यूट्स हुए। बहुत टाइम से कहानी चल रही थी। 2019, if I'm not wrong, November December 2019, they approached to me कि सर बीइंग आप आर्बिट्रेटर जैसे आप काम कर लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़े, आर्बिट्रेटर जैसे काम करें, उस डील को क्रैक करें सर, खत्म करें इस मैटर को, उन्हें हटाना है बाहर, 6th शेयर होल्डर को डायरेक्टर से भी हटा दो और शेयर होल्डर से भी हटा दो। सर अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी पर्सन को आप शेयर होल्डर से हटा दें। डायरेक्टर से तो हटा दें सर, बोर्ड भी आपके पास है, मेजर बोर्ड आपके पास है, मेजर शेयर होल्डिंग आपके पास है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करें, हटा दें डायरेक्टर। बट इस पर्सन को आप शेयर होल्डिंग से कैसे हटाओगे जब तक ये शेयर ट्रांसफर फॉर्म पर साइन ना करें, एसएच फॉर्म पर जब तक साइन ना करें, आप कैसे इन्हें शेयर होल्डिंग से हटा दोगे? अच्छा खासा मैटर चला, बहुत कोशिशें हुई और उस पर्सन ने मना कर दिया, इन एनी सिचुएशन आई एम नॉट गोइंग टू सरेंडर माय शेयर्स। हम इवन प्रीमियम देने को तैयार हैं कि आप और पैसा ले लें, बट उन्हें भी समझ में आ रहा था कि विदाउट मी ये काम नहीं कर सकते, मतलब विदाउट माय कंसेंट ये मेरे शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो लेट देम स्ट्रगल, करने दो इन्हें फाइट। बट सर कोरोना के जस्ट पहले एमसीए एक खुशखबरी लेकर आया एनसीएलटी के हवाले से। फरवरी 2020 का अमेंडमेंट है सर, बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट, माइट बी पॉसिबल ये आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। सर अगर शेयर होल्डर्स जिनकी 75% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है और वो चाहते हैं कि बचे हुए शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग भी हमें मिले, दे कैन अप्लाई टू एनसीएलटी। नाउ देयर इज अ रूट अवेलेबल टू देम। सर वो एनसीएलटी रूट करें, एनसीएलटी को अप्रोच करें और बोले सर हम बची हुई शेयर होल्डिंग खरीदना चाहते हैं। तो ये 5 शेयर होल्डर जो है आज की डेट में उनके पास 90% शेयर होल्डिंग है और फाइनली वी एडवाइज देम कि आप हम एनसीएलटी में पिटीशन फाइल करते हैं, एनसीएलटी में अप्लाई करते हैं और अगर आपके पास 75% से ज्यादा शेयर्स है और आप रिमेनिंग शेयर्स भी अक्वायर करना चाहते हैं, आप अक्वायर कर सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू अप्लाई टू एनसीएलटी और फिर एनसीएलटी कहेगा कि आपको अगर ये शेयर्स अक्वायर करने हैं इन शेयर होल्डर से तो किस वैल्यू पर करोगे, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू निकलवा कर लाए। तो वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट, February 2020। नाउ इफ इट इज अ क्रॉस बॉर्डर मर्जर में एक कंपनी बाहर की इन्वॉल्व है तो भी सर सेम प्रोविजंस है, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस करके लॉ में लिखा हुआ है, इट मींस जैसे वहां वैसे यहीं, तो सर वैल्यूएशन यहां भी रिक्वायर्ड होगा इवन इट इज अ क्रॉस बॉर्डर मर्जर। Now, the last point is with respect to winding up of the company. सभी लोग कहेंगे कि वाइंडिंग अप में कंपनीज एक्ट को रेफर करने की जरूरत नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। अब तो एक बड़ा लॉ अवेलेबल है, अच्छा लॉ अवेलेबल है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। व्हाई वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट? सर अभी भी कुछ सिचुएशंस में वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट ही डील करता है। आईबीसी इज बेटर रूट, तो इफ यू आर हैविंग ऑप्शन तो फिर ऑब्वियसली आईबीसी हम रूट करते हैं और ऑप्शन नहीं आईबीसी ही डील होता, आईबीसी ही डील करता है एनसीएलटी के थ्रू। बट सर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अभी भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा फॉर वाइंडिंग अप और इन केस ऑफ वाइंडिंग अप अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एनसीएलटी लिक्विडेटर अपॉइंट करता है और लिक्विडेटर बहुत सारी रिपोर्ट सबमिट करता है टाइम टू टाइम एनसीएलटी को और उसी में एक इंक्लूड है वैल्यूएशन और ये वैल्यूएशन भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही करवाना है। तो if it is winding up according to the Companies Act, valuation registered valuer करेंगे। Sir, even if it is winding up according to insolvency code, valuation registered valuer ही करेंगे क्योंकि वहां already registered valuer का provision available है। We'll discuss it. Right. So, sir, here I complete the first part of the discussion. Valuation provisions under Companies Act and various companies rules. I would like to address the doubts, तो if you are having, तो आप चाहे सेशन के बीच में आप बता सकते हैं या if all agree हम सेशन के बाद में भी डाउट्स ले सकते हैं। तो I hope we should move ahead और सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट होता है बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत जगह प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज आल्सो अलाउड टू डू द वैल्यूएशन टास्क।
सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7p बहुत लोगों को परेशान किया जिस सेक्शन ने कि अगर आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, इन क्लोजली हेल्ड की डेफिनेशन बहुत सिंपल दी हुई है इनकम टैक्स एक्ट में, द कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। कौन सी कंपनीज होती हैं जिनमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है? तो लाइक जहां गवर्नमेंट की स्टेक है एक लिमिट से ज्यादा, लाइक 25% से ज्यादा, या लिस्टेड कंपनीज, या सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट वाली, तो या चिट बिजनेस वाली कंपनी, तो ये सारी कंपनीज कहलाती हैं वाइडली हेल्ड पब्लिक कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। और अगर वो आप नहीं है तो फिर आप क्लोजली हेल्ड है। हमारे लिए तो सर बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी क्लोजली हेल्ड। और मुद्दा यही होता है कि अगर आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर इशू कर दिए तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि डिफरेंस अमाउंट आपके लिए इनकम माना जाएगा और उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। लेकिन सर उस प्रोविजन को अगर ढंग से पढ़े तो प्रोविजन 2 स्टेप्स में बात करता है। पॉइंट नंबर 1, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है प्रीमियम पर, मींस अगर शेयर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 1 शेयर्स प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, कंडीशन नंबर 2 फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर इशू हो रहे हैं। तो सर फेयर मार्केट वैल्यू से जितने ज्यादा पर इशू होंगे, नॉट फ्रॉम फेस वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर जितने भी ज्यादा पर इशू होंगे डिफरेंस अमाउंट कंपनी के लिए इनकम है। सपोज आपकी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू ₹10, फेयर मार्केट वैल्यू ₹22 और आपने ये शेयर इशू किया 32 पर, तो 10 रुपए एक शेयर के लिए आपकी इनकम मानी जाएगी। आपने ऐसे 1 लाख शेयर्स इशू किए तो सर 10 लाख रुपए हमारी इनकम होती है। Although I am not that much expert of income tax act, यहाँ मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट बैठे हुए हैं सभी लोग, बट स्टिल सर आई विल ट्राई, जहां जहां वैल्यूएशन से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं आई विल ट्राई टू कवर। और जहां भी सर आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ प्लीज मुझे बिल्कुल आप बता दीजिएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प मी टू इम्प्रूव माय कंटेंट। तो प्लीज मैं मानता हूँ आप सब मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स। तो 56(2)(7)(b कहता है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर इशू करोगे डिफरेंस अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी इफ इट इज क्लोजली हेल्ड। 4 एक्सेप्शंस है सर। अगर शेयर्स किसी नॉन रेसिडेंट को इशू किए हैं ये प्रोविजन नहीं लगता। अगर शेयर्स इशू किए हैं वेंचर कैपिटल फंड को, ऑब्वियस है स्टार्टअप्स के केस में डील ज्यादा बड़ी होती है, बहुत अलग अलग, और आप जानते हैं स्टार्टअप का वैल्यूएशन एक अलग ही लाइन है, तो वहां पर डेफिनेटली ज्यादा पर इशू होते हैं। हम एग्जाम करके बैठे हैं, यहाँ टैक्स नहीं लगाएंगे अगर शेयर्स इशू किए हैं वेंचर कैपिटल फंड को। अगर इन्वेस्टमेंट है बाय ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 एंड 2, नॉट कैटेगरी 3। सर आप जानते हैं सेबी रेगुलेशन 2013 विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जहां 3 कैटेगरी होती है आईएफ की, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। टू सम अप, कैटेगरी 1 आर वेंचर कैपिटल फंड्स, सोशल वेंचर फंड, एसएमई फंड, इंफ्रा फंड्स एटसेट्रा। ये है कैटेगरी 1 दैट इंक्लूड वेंचर कैपिटल फंड, इंक्लूड एंजल फंड। तो एंजल फंड एआईएफ कैटेगरी 1 है सर। कैटेगरी 3 जो जनरली हेज फंड्स के नेचर के होते हैं, और कैटेगरी 2 के लिए रेगुलेशन कहता है जो कैटेगरी 1 एंड 3 में कवर नहीं हुआ, डेफिनेटली वहां सर कवर होते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड, डेट फंड एटसेट्रा। तो हम हेज फंड को यहाँ पर एग्जाम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं कैटेगरी 1 और 2 एआईएफ को तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, शायद वो प्राइवेट इक्विटी या बीसीएफ के फॉर्म में फंडिंग हो रही है, दैट्स द रीजन। एंड पॉइंट नंबर 4, ये तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से कई बार फेस किया होगा। आपने अपने क्लाइंट की कंपनी बनाई होगी, उसको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन दिलवाया होगा डीपीआईआईटी से, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, और जिसे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कहते हैं अंडर इनकम टैक्स है, जिसको लेने के बाद 3 साल तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा स्टार्टअप्स को। बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं कैपिटल गेन हेड में और सब जगह। तो अगर ये कंपनी स्टार्टअप है रजिस्टर्ड विद डीपीआईआईटी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम कहती है कि आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएं इनकम टैक्स एक्ट में, तो सेक्शन 56 कहेगा कि ये प्रोविजन उन कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस जनरली सर स्टार्टअप्स को छोड़ना था और एक छोड़ना है फॉरेन के इन्वेस्टर को।
तो अगर कंपनी इसके अलावा क्लोजली हेल्ड कंपनी है और इन चार के अलावा कोई और तरीके से शेयर्स इशू करती है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर डिफरेंस अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। सर मेजर इशू है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर। इट मींस व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन इज फेयर मार्केट वैल्यू। हाउ टू डिटरमाइन द फेयर मार्केट वैल्यू? देयर आर टू रूल्स, वन इज फॉर इक्विटी एंड अदर वन इज फॉर प्रेफरेंस। क्योंकि सर यहाँ सिक्योरिटीज की बात नहीं हो रही है, शेयर्स की बात हो रही है। शेयर्स इंक्लूड इक्विटी एंड प्रेफरेंस, जहां तक मेरी समझ है यहाँ प्रेफरेंस भी कवर होंगे। Fair market value of equity share for the purpose of section 56 subsection 2 clause 7b, how to determine fair market value, ये बताता है सर रूल 11 UA2। सिंपल रीडिंग से भी आप सर ये समझ सकते हैं कि यहां पर दो मेथड अवेलेबल है। एक मेथड तो टिपिकली डेडिकेटेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, एफएम को, कैपिटल बजटिंग, डिस्काउंटिंग रेट और फ्यूचर के कैश फ्लोज की करने डिस्काउंटिंग। और दूसरा है सर सिंपल बुक वैल्यू मेथड, असेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। बहुत बुरा हुआ था जब यहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड हटाया गया था और अब केवल हम ये कहते हैं कि अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से आपको वैल्यूएशन करवाना है तो ओनली मर्चेंट बैंकर इज अलाउड। तो हम कहते नहीं करवाना मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन, सीए ही है हम तो, प्रैक्टिसिंग सीए हम करना चाहते हैं सर बुक वैल्यू मेथड से करते हैं। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है बुक वैल्यू मेथड से? सर बुक वैल्यू मेथड से क्या फर्क पड़ता है? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सर आप देखिए, एक कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं। फिक्स असेट्स है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और अदर फिक्स असेट्स जिनकी रेस्पेक्टिव बुक वैल्यू दी हुई है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपकी बैलेंस शीट 22, 28, 5 लाख। करंट असेट्स है 21 लाख, करंट लायबिलिटीज है 9 लाख और लॉन्ग टर्म डेट है 11 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल है 20 लाख, एक शेयर की फेस वैल्यू है सर 10 रुपए और नंबर ऑफ शेयर्स इसीलिए हो जाते हैं 2 लाख। फेयर इनफ, ये इंफॉर्मेशन है सर। अब आप चाहते हैं 11 UA2 को फॉलो करके कि हमारी कंपनी नए शेयर इशू कर रही है। सर ये तो बहुत यूज होता है रेगुलर लाइफ में। कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, दे अप्रोच टू अस कि सर क्या शेयर इशू कर लें, 10 रुपए वाला शेयर 50 पर इशू करना है। फिर ये सीएस का एस्पेक्ट से ज्यादा तो हमारा एस्पेक्ट है कि फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर ना हो जाए। हाउ टू डिटरमाइन फेयर मार्केट वैल्यू? देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज बुक वैल्यू मेथड जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्या करें सर? सारी असेट्स का टोटल कर लें 22, 28, 5 और करंट असेट्स 21। करंट लायबिलिटी का टोटल कर लें और लॉन्ग टर्म डेट का टोटल कर लें। आउटसाइडर्स लायबिलिटी का टोटल कर लें 11 एंड 9 माइनस कर लें, डिवाइडेड बाय कर दें नंबर ऑफ शेयर्स। ये होगी सर आपकी असेट, आपके शेयर्स की बुक वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट इट? हम सम कर लेते हैं, असेट्स का सम कर लेते हैं सर। टोटल असेट्स है 76 लाख, टोटल लायबिलिटीज है 9, 11, 20 लाख। नेट असेट होती है 76 माइनस 20, 56 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 2 लाख। तो सर फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होती है 56 डिवाइडेड बाय 2 इज 28। आई अग्री कि ये मेरी कैलकुलेशन करते ही आप सब लोगों को डाउट आ चुका होगा, दिस इज नॉट फेयर। 28 रुपए कंपनी की शेयर की वैल्यू, हमारी बिल्डिंग 22 लाख में, हमने 22 लाख तब है जब हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसीडर किया। आज की डेट में हमारी बिल्डिंग तो 4 करोड़ रुपए की है। तो हमें तो लगता है कंपनी के नेटवर्क, क्योंकि बेसिकली हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने में, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, हम बहुत एक्सपर्ट हैं। हमें लगता है इतने अच्छे खासे रिजर्व पड़े हैं, कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपए होनी चाहिए, बट सर कोइंसिडेंटली 11 UA2 कहता है 28 रुपए आपके शेयर की प्राइस है। आप कहते हो रोहित जी एक काम करो, ये गलत काम हटाओ, 22 लाख को रिप्लेस करो 4 करोड़ से। मैं कहता हूं सर सॉरी, रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों है सर? सर वो ऐसा इसलिए है क्योंकि बुक वैल्यू मेथड यही कहता है। ए माइनस ए का मतलब है सर बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स, नॉट मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स, सिंपली बुक वैल्यू ऑफ द असेट। और एल मींस बुक वैल्यू ऑफ आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ए माइनस एल।
एक आर्गुमेंट आता है, यहाँ नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया आपने, जबकि यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई बाय पीवी डिवाइडेड बाय पीई। सर इसको भी मैं आके एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक आप बिल्कुल ये समझ लें ये डिवाइडेड बाय 2 लाख ही होने वाला है, क्योंकि पीवी का मतलब है एक शेयर की फेस वैल्यू, हम कहेंगे 10, और पी का मतलब है टोटल शेयर कैपिटल दैट इज 20 लाख। तो सर वो टेक्निकली होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 लाख, जो ऑलरेडी हमने कर दिया। ये बड़ा मैटर नहीं है, मैटर है ए माइनस एल, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, एंड एल बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। इसी वजह से सर हम जाते हैं मर्चेंट बैंकर के पास, ताकि फ्यूचर के कैश फ्लोज का प्रोजेक्शन किया जाए, उनकी डिस्काउंटिंग की जाए विद एप्रोप्रिएट रेट, और आज निकाल ली जाए कंपनी के शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। वो थोड़ी सी ऑब्वियस से ज्यादा आ सकती है, आती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शंस। तो इसीलिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज करवाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम यूज नहीं कर सकते, वहां ओनली मर्चेंट बैंकर इज अलाउड। और यही बात स्टार्टिंग में हो रही थी कि वी आर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन कि यहां भी अलाउ किया जाए एटलीस्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, बट अभी यहां केवल मर्चेंट बैंकर। अगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करनी है तो सर रूल लगेगा 11 UA 1 CC। वो कहता है वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर भी कर सकते हैं, यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकते हैं, वन मोर अपॉर्चुनिटी फॉर अस। पर वैल्यूएशन कैसे करें? कहते हैं आज की डेट में अगर आप इसे बेचोगे तो ये शेयर कितने में बिकेगा, द प्राइस विच वन कैन रिसीव बाय सेलिंग द शेयर इन द मार्केट, ये ध्यान रखकर आपको वैल्यूएशन करना है। दिस इज फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 5627B। तो सर यहां पर एक प्रॉब्लम है कि यहां बुक वैल्यू से जब आप जाओगे तो ए माइनस एल के लिए बुक वैल्यू ऑफ असेट्स यूज करनी है, ना कि मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स। लेकिन जहां पर सर फिर हमें बहुत रेगुलरली कॉल आते हैं कि सर शेयर्स का ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्टर्स आपस में, प्रमोटर्स आपस में, सब्सक्राइबर्स आपस में, शेयर होल्डर्स आपस में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, और शेयर अनलिस्टेड है, कौन से अमाउंट पर करें, कौन सी प्राइस पर ट्रांजेक्शन करें? कंपनीज एक्ट इज क्वाइट साइलेंट। अगर यहां पर हम कंपनीज एक्ट की बात करें सर, यहां तो कंपनीज एक्ट कह ही रहा है कि प्रेफरेंशियल इशू है, ईसॉप है, स्वेट है, वैल्यूएशन करवाना है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, और फेयर मार्केट वैल्यू के लिए वैल्यूएशन करवाना है मर्चेंट बैंकर या चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अगर बुक वैल्यू से है तो। लेकिन ट्रांसफर के लिए तो कंपनीज एक्ट कहीं भी नहीं कहता कि अगर आपको शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो आपको वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, देयर इज नो रूल। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर किसी पर्सन ने अनलिस्टेड शेयर्स बेचे हैं और फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर बेचे हैं, बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पर, इनकम टैक्स एक्ट सबको बहुत ज्यादा पसंद भी है और सबने ऐसा बहुत बार किया है, स्पेशली सेक्शन 50C और 43CA, जहां लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी जब बेची जाती है तो चाहे वो बिल्डर बेच रहा हो एज ए स्टॉक या हम बेच रहे हो एज ए कैपिटल असेट, हम ध्यान रखते हैं कि गाइडलाइन वैल्यू से कम पर ट्रांजैक्शन ना हो। जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन लॉ कहता है अगर आपने गाइडलाइन वैल्यू से कम पर ट्रांजैक्शन किया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गाइडलाइन वैल्यू को मान लिया जाएगा। इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। सेम प्रोविजन ये शेयर्स के केस में भी ले आए कि अगर आपने अनकोटेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर किए और आपने अगर ट्रांसफर किया फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर, फेयर मार्केट वैल्यू 100, आप ट्रांसफर करना दिखा रहे हो 40 पर, जस्ट टू इवेट द इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो हम कह रहे हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा 100 रुपीज। Transfer of shares at lower prices compared to fair market value, then fair market value will be considered as full value of consideration। यही पंगा है और इसीलिए सर अब प्रैक्टिस बन चुकी है कि बिफोर ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी हम वैल्यूएशन करवा लेते हैं। एक तो सीनियर कंपनी सेक्रेटरी से इसलिए करवाते हैं ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि 50CA वाला प्रोविजन है, और इसी वजह से सर यहां भी शेयर्स का वैल्यूएशन होता है। वन मोर अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बट कहां है वो देखते हैं। अब हाउ टू कैलकुलेट द फेयर मार्केट वैल्यू।
सर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ उन्होंने फिर से एक फॉर्मूला दे दिया, बट हाउ इंटेलिजेंट दे आर कि जब शेयर्स इश्यू करवाना था तो हमें पता था कि ये ज्यादा पर करेगा, तो कम पर लाने के लिए क्या करें, एसेट्स की बुक वैल्यू। लेकिन हमें अब पता है कि ज्यादा पर आना चाहिए ताकि कैपिटल गेन बढ़ा हुआ है। एवरी टाइम दे आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेवेन्यू। कंपनी इश्यू करे तो कम फेयर मार्केट वैल्यू आनी चाहिए, जब आप ट्रांसफर करें तो फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। और अब की बार क्या हुआ है सर, A माइनस एल नहीं है, अब की बार है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल, और ये BCD जो आया है ना सर, ये है असेट्स की मार्केट वैल्यू। स्ट्रेंज बट ट्रू, नथिंग इज स्ट्रेंज, दे आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेवेन्यू ओनली। ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू है, इट्स वेरी क्लियर, बहुत क्लियर इंटेंशन है सर। और इसीलिए A मींस बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स एक्सेप्ट ज्वेलरी है आपकी बुक्स में, उसकी मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है आपकी बुक्स में, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टीज है आपकी बुक्स में, उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, गाइडलाइन वैल्यू। जोड़ दे सबको, माइनस करें लाइबिलिटीज, और फिर मल्टीप्लाई बाय पीवी, इट इज पेड अप वैल्यू ऑफ सच इक्विटी शेयर 10 रुपए, डिवाइडेड बाय पीई, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, टेक्निकली होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख ही थे सर हमारे एग्जांपल, बट स्टिल दे राइट इट पीवी अपॉन पी। सर अगर एक्सेल शीट का रेफरेंस हम वापस से ले तो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ सर रिप्लेस हो जाएगा 22 की जगह फिर आपको सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, दैट इज ₹4 करोड़। मैंने सर इसी वीक के केस एक डील किया है, एक मेरा ही बैचमेट रहा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंदौर में, उसका कॉल आया कि यार रोहित मेरी एक कंपनी को शेयर ट्रांसफर करने हैं, तो कैपिटल गेन बहुत बड़ा आ रहा है क्योंकि 10 रुपए में शेयर्स खरीदे थे, और अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू भी कैलकुलेट करूं उनकी तो करीब करीब एक शेयर की वैल्यू 600 रुपए आ रही है, तो 590 पर दे आर नॉट विलिंग टू पे द टैक्स। इवन इंडेक्सेशन भी कर लेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला ज्यादा, दे आर नॉट विलिंग। और वैसे भी वैल्यूएशन करवाना ही है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनीज एक्ट बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 50CA, ट्रांसफर ऑफ अनकॉटेड शेयर्स। तो यार वैल्यूएशन कैसे होगा, तो व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं सिंपली उसकी बैलेंस शीट की असेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दूंगा। मैंने उनसे कहा कि यार आपकी बिल्डिंग कहाँ है, एक्चुअली रियल एस्टेट कंपनी थी और एक स्टॉक दिखा हुआ है बुक्स में, स्टॉक था 2 करोड़ रुपए का, और वो स्टॉक के नाम पर है एक्चुअली एक लैंड जो हमने 3 साल पहले खरीदी थी उस कंपनी में। मैंने कहा इस लैंड की एरिया बता दो और एटलीस्ट का हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। मैंने आर्ग्यूड कि क्यों चाहिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, नहीं सेड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही कैलकुलेट होगी और वही ऐड होगी। ही सेड कि A माइनस एल यूज होता है, सॉरी सर नहीं यूज होता, A माइनस एल यूज होता है 5627B जब आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो। जब शेयर ट्रांसफर हो रहे ना सर, दे आर वेरी क्लेवर, तब A माइनस एल नहीं होगा, तब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल होगा। और इसीलिए सर मैं रेफरेंस बता रहा हूं रूल का 11UA 1CB, इनकम टैक्स रूल्स 1962 की बात कर रहा हूं, और वहां लिखा हुआ है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल। और सर कहीं ना कहीं यहां वेरिएशन ज्यादा आएगा। नाउ सेम प्रोविजन डिफरेंट पर्सपेक्ट, अगर आपको कोई भी शेयर मिल रहा है फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर, डिफरेंस अमाउंट आपके लिए टैक्स है, वही गिफ्ट मान लें एक तरह से 56। एक शेयर आपको रिसीव हुआ 100 रुपए वाला शेयर आपको 20 रुपए में किसी ने दे दिया, 80 रुपीज इज योर इनकम। हाउ टू कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू, यहां कुछ अलग ही लिखा है, यहां के लिए रूल लिखा है 11UA 1CA। कहते हैं अगर तुम्हें लिस्टेड शेयर्स मिले फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर, तो फेयर मार्केट वैल्यू किसको मानेंगे, हाउ टू कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू। कह रहे हैं अगर ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुआ है तो स्टॉक एक्सचेंज पर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी को मान लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। इट मींस टेक्निकली यहां कुछ नहीं होगा। और आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज डील हुआ है तो वैल्यूएशन डेट पर जो स्टॉक एक्सचेंज पर लोवेस्ट प्राइस है, ये आपके फेवर में प्रोविजन है पहली बार। लोवेस्ट प्राइस ऑन द वैल्यूएशन डेट
you need to take into account to determine the fair market value, और ये मानी जाएगी fair market value. बट ये तब जब शेयर्स लिस्टेड है. अब आप कहोगे रोहित जी आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ये अनलिस्टेड शेयर्स के लिए बात कर रहा हूं. नहीं सर, वो बात चल रही थी 50CA. यहां बात चल रही है एनी सिक्योरिटी विच में बी लिस्टेड और अनलिस्टेड. लिस्टेड है, ट्रांजेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुआ, फेयर मार्केट वैल्यू मींस ट्रांजैक्शन वैल्यू. आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्ट किया है, फेयर मार्केट वैल्यू मींस लोएस्ट प्राइस ऑन द वैल्यूएशन डेट. और अनकोटेड सिक्योरिटीज अगर है सर, तो सेम रूल जो हमने अभी पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस एप्लीकेबल होगा बोथ द साइड. इसीलिए सर ये विजिबल है, जो आप एडवाइस भी देते होंगे अपने क्लाइंट को कि चाहे आप शेयर खरीदें या बेचें, ऑब्वियसली एक ट्रांसफर हो रहा है तो एक खरीद रहा है और बेच रहा है, दोनों के फेवर के लिए एक ही बात है कि ट्रांजैक्शन शुड बी एट फेयर मार्केट वैल्यू. अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर ट्रांजैक्शन हुआ तो सेलर को टैक्स बड़े अमाउंट पे लगना है, क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हम फेयर मार्केट वैल्यू को मानेंगे, राइट. और अगर आपने फेयर मार्केट, और इधर बायर के लिए क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर डील करोगे तो डिफरेंस अमाउंट बायर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा. तो इससे बेटर है, दोनों के लिए अच्छी प्रोविजन बात है कि हम फेयर मार्केट वैल्यू पर ट्रांजैक्शन करें. ये सबसे अच्छा वोडाफोन इंडियन कंपनी के शेयर्स किसी फॉरेन एंटिटी के पास थे. इंडियन कंपनी के शेयर्स फॉरेन एंटिटी के पास थे और फॉरेन एंटिटी वो इंडियन कंपनी के शेयर्स सेल कर रही है. एक नया इंसर्शन आया 911 में. 911 जनरली टॉक्स अबाउट इनकम डीम्ड टू बी अक्रूअलाइज्ड इन इंडिया. वहां एक नया इंसर्शन था कि अगर शेयर सेल कर रही है फॉरेन एंटिटी इंडियन कंपनी के, तो वैल्यूएशन इस तरह से होगा उन शेयर्स का. आप आर्बिट्ररी प्राइस पर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, इस तरह से वैल्यूएशन होगा. ये थोड़ा सा टेक्निकल है. अगर उन शेयर्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो सर फिर फेयर मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की जो स्टॉक एक्सचेंज पर ऑब्जर्वेबल प्राइस है, मींस जो मार्केट में प्राइस चल रही है, दैट इज एफएमबी. अगर ये लिस्टेड नहीं है तो फिर आप वैल्यूएशन करवा लें बाय ईदर द मर्चेंट बैंकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगेन एक अपॉर्चुनिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से वैल्यूएशन करवा लें या मर्चेंट बैंकर से, बोथ आर अलाउड. कौन से मेथड से करें, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. लेट मी इंक्लूड असेट मेथड, कॉस्ट मेथड और मार्केट मेथड. तीन ही मेथड जनरली चलती हैं. तो इनकम मेथड, कॉस्ट मेथड, मार्केट मेथड जनरली हम यूज करते हैं. एसेट मेथड को सॉरी कॉस्ट मेथड कहा जाता है. नाउ अगर लेकिन ये शेयर्स नहीं है, कोई और सिक्योरिटी है, तो वो रूल जो हमने प्रेफरेंस के लिए पढ़ा था 56(2)(7)(b) में कि अगर बेचोगे तो आज कितने में बिकेगा, द प्राइस व्हिच वन कैन रिसीव बाय सेलिंग द शेयर्स इन द ओपन मार्केट, यू नीड टू डिटरमाइन इट बाय मर्चेंट बैंकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट. जो वहां पर भी ये लिखा था. वैल्यूएशन करवाना है, बट वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी क्या, हाउ मच यू कैन फेच बाय सेलिंग दीज सिक्योरिटीज इन द मार्केट, दैट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू. विद दिस सेकंड एस्पेक्ट खत्म हुआ सर आज के डिस्कशन का, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट 1961. ये लास्ट जब प्रोविजन था जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम हमें सुनने को मिला विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन. इफ वी टॉक अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो सर यहाँ वैल्यूएशन के लिए केवल एलिजिबल है रजिस्टर्ड वैल्यूअर. नाउ लास्ट सेशन मेरा कंपनी सेक्रेटरीज के साथ था. मुझे ऐसा लगता था कि आईबीसी में उन लोगों को वैसे ही बहुत नॉलेज है, तो मैंने आईबीसी वाला पार्ट बस यहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. बट लेटर ऑन मुझे बहुत सारे ऐसे डाउट्स डील करने हुए जहां मुझे समझ आया कि बेटर टू डिस्कस विद द बेसिक. और इसीलिए प्लीज डोंट टेक इट लाइक कि ये क्या पढ़ा रहे हो, हमें वैल्यूएशन केवल समझना है, व्हाट वी आर डिस्कसिंग. प्लीज बेयर विद 2 to 5 मिनट्स विद मी. मैं पहले बेसिक्स डिस्कस करना चाहता हूं कि आईबीसी में, अल्दो आई नो कि हम सब सीनियर्स लोग हैं यहाँ पर, सबको पता है आईबीसी में 2 मेथड चलते हैं, 2 रूट्स अवेलेबल होते हैं. स्टिल मैं एक बेसिक डिस्कस कर लेता हूँ सर, अगर नहीं किसी को क्लियर होगा तो एटलीस्ट यहाँ पर हो जाए. सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में 2 तरीके से आप जा सकते हो.
पहला तरीका है, हम इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन करवाना चाहते हैं। फर्स्ट वी ट्राई टू रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी, वी कॉल इट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP। CIRP की प्रोसेस के लिए आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर भी ले जा सकते हैं, जिनसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा था पर पैसे नहीं दिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर। आप जिनसे आपने लोन लिया था पर नहीं दिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। दोनों आपको ले जा सकते हैं कि सर ये पैसे नहीं दे रहा, पैसे दिलवाओ, इनकी CIRP स्टार्ट करवाओ। NCLT के पास जा सकते हैं आपके क्रेडिटर, वेदर इट इज ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, सब्जेक्ट टू मिनिमम अमाउंट उनका क्लेम होना चाहिए 1 करोड़ रुपए आफ्टर इंक्रीज इन द लिमिट। अदरवाइज पहले लिमिट बहुत कम थी, दैट इज ₹1 लाख। आई होप एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के क्लेम अगर आप पे नहीं कर रहे हैं, ये NCLT रूट कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, सर इनकी CIRP स्टार्ट करें। वहां भी अच्छा, तीसरा और कौन ले जा सकता है आपको CIRP में? हम कहते हैं हम खुद। कॉर्पोरेट डेटर खुद भी बाय स्यूमोटो अप्लाई कर सकता है कि सर मैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चाहता हूं, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू पे द डेट, प्लीज स्टार्ट द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो यहां हम कंपनी को बंद नहीं करते सर, यहां हम कंपनी को रिवाइव करवाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी कोई रिजोल्यूशन प्लान लेकर आए और कंपनी किसी को बेच दे और वो इस कंपनी को आगे चलाए। बहुत पॉपुलर केस आपने देखे हैं, बहुत सारे पॉपुलर केस देखे। हमारे इंदौर में तो एक बहुत पॉपुलर केस हुआ, रुचि सोया वाला, जिन्हें पतंजलि ने खरीद लिया और बाबा रामदेव सक्सेसफुली चला रहे हैं उनकी कंपनी को CIRP की प्रोसेस के बाद। मेनी मोर अदर केसेस आर देयर। पहला तरीका है इंसॉल्वेंसी का रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन प्लान आएंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो जिसे अप्रोप्रिएट समझेगी उन्हें रिजोल्यूशन प्लान उनका अप्रूव करेगी और उन्हें कंपनी दे देगी, बदले में उनसे पैसे मिल जाएंगे या कंपनी को वो रिवाइव करने की कोशिश करेगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन प्लान। और दूसरा तरीका है सर कि अगर रिजोल्यूशन नहीं कर पाए, इफ यू गॉट फेल्ड, अगर रिजोल्यूशन नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? रिजोल्यूशन प्लान ही नहीं है, nobody was there to submit the resolution plan for us, कोई नहीं आया हमारी कंपनी खरीदने, आए लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर को कोई प्लान पसंद नहीं आया या NCLT ने सारे प्लान रिजेक्ट कर दिए, नाउ देयर इज नो मोर प्लान जो कंपनी में बचे इन द नेम ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। तो फिर एक ही तरीका बचता है कि कंपनी को लिक्विडेट करो, असेट्स बेचो, जितनी लायबिलिटी जिस एक्सटेंट तक पे हो सकती है पे करें। लिक्विडेशन प्रोसेस, हालांकि लिक्विडेशन में एक और तरीके से आया जा सकता है। जनरल लिक्विडेशन होता है जब इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फेल हो जाए। लिक्विडेशन प्रोसेस एक और तरीके से होती है जब कंपनी स्यूमोटो लिक्विडेशन करवाना चाहे। नाउ देयर विल बी अ डाउट, स्यूमोटो तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई थी। यस सर, इफ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द डेट और कंपनी IBC की शरण लेना चाहती है तो CIRP। कंपनी इज इन कैपेसिटी टू पे द डेट, कंपनी में कोई नॉन पेमेंट नहीं है और कंपनी वाइंड अप होना चाहती है तो फिर लिक्विडेशन प्रोसेस में खुद को ला सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट की जगह जनरली यहां से होता है, बट स्टिल देयर आर सम केसेस जहां कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग अप, जो मैंने आगे बताया था कि यस कुछ केसेस हैं जहां चलता है अभी भी कंपनीज एक्ट। तो सर इसीलिए यहां हर बार मेरे डिस्कशन में दो चीजें मिलेगी, अंडर CIRP, अंडर लिक्विडेशन प्रोसेस। CIRP जहां जब तक COC अपॉइंट ना हो जाए, COC अपॉइंट होने के बाद फिर अपॉइंट होता है RP, जो हम भी हो सकते हैं IRP आगे कंटिन्यू, या नया पर्सन RP अपॉइंट होगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और फिर लिक्विडेशन के लिए हमें चाहिए लिक्विडेटर, तो नाम ही चेंज हो जाता है वहां। देयर आर टू प्रोसेस, रिजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन प्रोसेस। रिजोल्यूशन प्रोसेस या लिक्विडेशन, वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। हु आर एलिजिबल, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस प्रोविजन कहता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट होने के 7 दिन में 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करना है। हमें समझ आता है कि हर इंसॉल्वेंसी में 2 वैल्यूअर्स अपॉइंट होते हैं, बट नहीं सर, हर CIRP की प्रोसेस स्टार्ट होते ही 6 वैल्यूअर अपॉइंट होते हैं। 6 वैल्यूअर्स आर देयर टू अपॉइंट।
6 कहां से आ गए सर? 2 फॉर ईच क्लास. लैंड एंड बिल्डिंग 2 वैल्यूअर्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 वैल्यूअर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स 2 वैल्यूअर्स. एक्चुअली सर 2 लिखा है बट 6 वैल्यूअर अपॉइंट होते हैं, 2 फॉर ईच क्लास. रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होने के 7 दिन में अपॉइंट करेंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर को. और ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होने से 7 दिन में है. आप जानते हैं सर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लेट अपॉइंट होते हैं, पहले आईआरपी काम करते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग तक, फिर आरपी होते हैं. तो इसीलिए कहा है कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, जिस दिन से मॉरेटोरियम डिक्लेयर हो गया था, जिस दिन से आपकी इंसॉल्वेंसी सीआईआरपी की पिटीशन एक्सेप्ट हो गई थी, वहां से 47th डे मैक्सिमम, और 7 डे फ्रॉम योर अपॉइंटमेंट एंड 47 डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट यू नीड टू अपॉइंट 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर. सर मजेदार बात क्या है कि बीइंग अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर हमें 2 वैल्यू निकाल कर देनी पड़ेगी. बेसिक अगर क्लियर है तो हमें यहां भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि 2 वैल्यू क्यों निकालनी है. माइट बी पॉसिबल कंपनी का रिवाइवल हो जाए और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन सक्सेस हो जाए, एंड माइट बी पॉसिबल रिजोल्यूशन गॉट फेल, माइट बी पॉसिबल रिजोल्यूशन फेल हो जाए और लिक्विडेशन में जाना. एस्पेक्ट कि अगर कंपनी चलेगी तो असेट्स की वैल्यू कुछ और होने वाली है, और अगर कंपनी आज बंद हो जाए, लिक्विडेशन में चली जाए, तो वो फोर्स सेल होगी, डिस्ट्रेस्ड सेल होगी, और तब पैसा कम मिलेगा. इसीलिए because we are not as on today, we are not going to happen in the process. तो सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर को 2 वैल्यू निकाल कर देनी है. रजिस्टर्ड वैल्यूअर को 2 वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. फेयर वैल्यू ये अज्यूम करते हुए कि गोइंग कंसर्न है, चलेगी आगे. वन इज लिक्विडेशन वैल्यू इफ कंपनी गोज. थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, तीनों क्लासेस के रजिस्टर्ड वैल्यूअर का आईबीसी में आते ही. कंपनी का इंसॉल्वेंसी सीआईआरपी स्टार्ट हुआ, 2 रजिस्टर्ड वैल्यू अपॉइंट करने हैं टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू एज ए गोइंग कंसर्न एंड टू कैलकुलेट लिक्विडेशन वैल्यू if company goes into liquidation scenario. If it is not CIRP, if it is liquidation process, liquidation with सर आपका वीडियो नहीं आ रहा. अगर आप आ रहा है लिक्विडेटर चाहे तो 2 वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ने कैलकुलेट. यस सर, आप कुछ बोल रहे थे अनिल सर? यस अनिल सर, आर यू सेइंग समथिंग? आई थिंक थोड़ी सी सर रोशनी आ रही है नेटवर्क, आपका बीच में वो डिस्कनेक्ट हो जाती है वॉइस. ओके, अभी स्क्रीन आ रही है मेरे को दिख नहीं रहा सौरभ, मेरे को स्क्रीन थोड़ा छोटा दिख रहा है सर का. हाँ तो मुझे भी थोड़ा छोटा दिख रहा है स्क्रीन. तो लेट मी चेक माय माइक्रोफोन. आई होप इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली. सर मैं अभी सही आ रहा है, अभी सही आ रहा है सर. अभी सही है सर, अभी सही है. हाँ जी. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. सो लिक्विडेशन प्रोसेस में हम गए तो सर वहां नाम भी चेंज हो जाएगा. नाउ द प्रोफेशनल इज लिक्विडेटर. सर ऑलरेडी अगर आप सीआईआरपी से आ रहे हैं तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपको 2 वैल्यू निकाल कर दे चुके, गोइंग कंसर्न वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू. कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ द वैल्यू. कहां से आए? वैल्यूएशन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका अंडर रेगुलेशन 35, मींस ये कंपनी सीआईआरपी से लिक्विडेशन में आई है. इन दैट केस ऑलरेडी वैल्यूएशन हो चुका, 2 वैल्यूअर से वैल्यूएशन हो चुके, और वैल्यूएशन भी 2 आ चुके, फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू. टेक द एवरेज ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ द वैल्यू अराइव्ड अंडर दोस प्रोविजंस. तो यहां फिर अलग से वैल्यूएशन नहीं करवाएगा लिक्विडेटर. बट अगर ये लिक्विडेशन सीआईआरपी में कवर ही नहीं था, हम डायरेक्टली लिक्विडेशन में आए हैं, कंपनी डायरेक्टली वॉलंटरी लिक्विडेशन में आई है, तो फिर लिक्विडेटर रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करेंगे. और दूसरा केस सीआईआरपी से आए हैं बट लिक्विडेटर का मानना है
कि फ्रेश वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। सर कई बार बहुत टाइम हो जाता है, अल्दो लॉ मेकर ने कहा था कि मैक्सिमम 270 डेज, एक्सटेंशन हो सकता है 330 डेज मैक्सिमम आप कर लें, बहुत कुछ हुआ था। बट सर प्रैक्टिकली अभी भी चीजें एक साल में तो रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। एक्सपीरियंस कहता है कि वी आर टेकिंग अराउंड 3 to 4 years टू रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, टू रिजॉल्व द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। तो अगर उनका ओपिनियन है कि वो वैल्यू अब रिलेवेंट नहीं बची है, तो सर फिर लिक्विडेशन भले ही सीआईआरपी के बाद हो रहा है, सीआईआरपी सक्सेस नहीं हुई इस वजह से लिक्विडेशन में आए हैं, और वैल्यूएशन पहले भी हो चुका है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के वक्त। लेकिन अगर लिक्विडेटर का ओपिनियन है कि फ्रेश वैल्यूएशन रिक्वायर्ड, तो फिर वैल्यूअर अपॉइंट होंगे। एंड इफ इट इज डायरेक्टली कमिंग इनटू लिक्विडेशन ड्यू टू वॉलंटरी लिक्विडेशन बाय द कंपनी, बिकॉज देयर इज नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डेट, तो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट होंगे लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 7 दिन। मींस अगर आप सीआईआरपी में हैं तो भी वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, सीआईआरपी से लिक्विडेशन में आए तब वैल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं है, लिक्विडेटर एवरेज ले सकता है वैल्यूएशन के पर्पज से। लिक्विडेशन का ओपिनियन है फ्रेश वैल्यूएशन रिक्वायर्ड, तो वैल्यूअर अपॉइंट होंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और अगर ये डायरेक्टली लिक्विडेशन कमेंसमेंट था तो भी फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट होंगे, और लिक्विडेशन के वक्त हमें वैल्यूएशन करवाना होगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। दिस इज द प्रोविजन अंडर लिक्विडेशन प्रोसेस। I tried to cover 3 Act, Companies Act और उनसे रिलेटेड रूल्स, इनकम टैक्स एक्ट और उससे रिलेटेड रूल्स, IBC और रूल्स रिलेटेड टू लिक्विडेशन इन CIRP. So this is the whole thing what I can convey to you. There are chartered accountants who can do the valuation. There are merchant banker who can exercise the valuation. There are registered valuer who can undertake the valuation exercise. But जिस तरह से ये provisions time to time change होते जा रहे हैं, I'm frankly saying from last 6 months what we are observing कि अब pressure है regulators पर। Recently SEBI ने amalgamation के केस में बोल दिया है, SEBI regulations in the case of amalgamation of listed companies, SEBI regulation ने लिख दिया है registered valuer से valuation लो। So registered valuer word, sir, in the coming time we are expecting under Income Tax Act, under FEMA, under SEBI guidelines, we are expecting all the words except merchant banker will get replaced by the registered valuer. But hope for the best, we don't know. But yes, एक डाउट मुझे सर और आता है जिसका मैं यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ, जनरली मैं स्टार्टिंग में करता हूँ। I forget to discuss about that in beginning. How to become a registered valuer? So sir, being a chartered accountant, being a practicing chartered accountant, you need to undertake a 50 hours compulsory training with any of the registered valuer organization. There are around 12 registered valuer organizations across the country. किसी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन की बैच से आप 50 हार्स की कंपलसरी ट्रेनिंग कर लें। हमारा ICAI का भी आरवीओ है सर, 50 हार्स की कंपलसरी ट्रेनिंग अभी तो ऑनलाइन हो रही है वीकेंड बेसिस पर। 50 हार्स की ट्रेनिंग के बाद जनरली हमें सर वहां सिलेबस पढ़ाया जाता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के एग्जाम का। उसके बाद सर एक ऑनलाइन NAC के अलग अलग जगह अवेलेबल रहते हैं एग्जाम सेंटर्स, वहां पर एक ऑनलाइन एग्जाम आपको अपीयर करना पड़ेगा, नॉट फ्रॉम योर होम, इट इज फ्रॉम द एग्जाम सेंटर। वो एग्जाम सर 100 मार्क्स का होता है, जहां बहुत अच्छा खासा एक सिलेबस है विच कवर ऑल द वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, नंबर ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सेबी गाइडलाइंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट एंड मेनी मोर, फेमा गाइडलाइन एक्सेट्रा। 100 मार्क्स का एक पेपर है सर, जिसमें 60 मार्क्स हमें पास होने के लिए लाने होते हैं विद नेगेटिव मार्किंग। और टिपिकली वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पेपर है, अगर मैं सही बोलूं तो बहुत सारा उसमें कवरेज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इट इज मोर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली, वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। वो बाय अपीयरिंग इनटू दैट एग्जाम, इन गेट आफ्टर पासिंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम, हमें फिर हमारे आरबीओ को अप्लाई करना पड़ता है टू गेट द मेंबरशिप फ्रॉम IBBI, एंड वंस IBBI अप्रूव अवर एप्लीकेशन, तो फिर हम बनते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर। उसके बाद एक छोटी सी 4 to 5 आवर्स की हमारी COP ट्रेनिंग होती है, एंड देन ओनली वी
are eligible to sign as a registered valuer. हमें COP मिलती है सर registered valuer की। और ये डाउट एक बहुत कॉमन आजकल आ रहा है जो मैं बहुत रेगुलरली सुना हूँ स्पेशली यंगस्टर से कि सर की COP है तो कैन वी होल्ड COP of the registered valuer with the chartered accountancy COP? तो yes, allowed. So dual COP is not allowed. It is allowed. Exceptionally, it is allowed. मैं ICSI की COP नहीं ले सकता, मेरे पास CS की COP नहीं है। CA और CS की COP हम होल्ड नहीं कर सकते साथ, बट CA की COP के कहा था कि अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का ये बिल पास हो जाता है तो इट विल बिकम अ प्रॉपर प्रोफेशन इन द कंट्री, क्योंकि हर डेवलप्ड कंट्री में रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक सेपरेट प्रोफेशन है। हम उसी लाइन में अभी हैं, उसी लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड इफ दैट बिल गेट पास, अगर वो बिल पास हो जाता है तो फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का एग्जाम भी CA जैसा ही होगा, 4 साल का करिकुलम होगा और उसके बाद ही मेंबरशिप मिलेगी। तब हम केवल एक ही COP रख पाएंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, बट टिल दैट टाइम हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर की COP रख सकते हैं with the COP of CA. That's all on my part. Thanks for the patience listening. I'm ready to take any of the doubts of the participants. Over to you, sir. Thank you, sir, for sharing your views and experience on the topic. I'm sure this webinar is going to be very useful for us. अगर कोई मेंबर्स की अगर कोई क्वेरी हो तो अपन डिस्कस कर सकते हैं अभी। रेज हैंड आ रहा था सौरभ, आई थिंक मेरे हिसाब से क्लाइंट डे के नाम से है। सर के पर्सनल चैट बॉक्स में अगर कुछ होता है। रोहित अगर कोई क्वेरीज होगी तो हम आपको मेल कर देंगे। सॉरी सर, मैं सुन नहीं अगर पाया कोई कुछ। अगर कोई क्वेरीज होगी ना तो हम आपको मेल कर देंगे उसके रिगार्डिंग, क्वेरीज के रिगार्डिंग। अभी कोई लाइव थोड़ी चैट बॉक्स पे सर आपके रोहित सर यस डेफिनेटली PDF में सर आपके रोहित सर आपके चैट बॉक्स में कोई क्वेरी आई है कोई? सर एक्चुअली ना चैट बॉक्स में शायद चैट्स डिलीट हो गई है, केवल 2 चैट दिख रही है। ओके, चलो कोई इशू नहीं सर। इनकेस अगर सौरभ जी आपके चैट बॉक्स में आई हो गई? नो सर, मेरे चैट बॉक्स में नहीं है सर, पर्सनली सर के चैट बॉक्स में नहीं है। चलो सर, इनकेस कोई अगर आईडी क्वेरी तो देन क्लियर विद यू ना सर। Yes, sir. Thank you so much to all the members and special thanks to our today's guest, CA Abhishek Mishra sir, for giving his valuable times to us, and Speaker Rohit Khandelwal sir. And yes, CA Anil Yadav sir, Chairman ICA Jaipur branch, Deep Gupta sir, and other committee members for taking the initiative for organizing these type of webinar for enhancing the professional knowledge of members in the COVID-19 pandemic. Thank you. Stay home, stay safe, and stay healthy. Thank you sir, thank you so much Rohit ji, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Saurabh sir. Thank you, Saurabh. Thanks to all sir. Thank you.